Good morning. Welcome to all e-learning classes of Madhyamik Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself Nidhi from GGIC Vijayanagar, Ghaziabad. Today I will teach you Social Studies of class 10th. In Social Studies there are 4 units: History, Geography, Civics and Economics. In Geography, today's our topic Water Resources, chapter 3rd. In this chapter, I will focus on these following contents: water, some facts and figures, water scarcity, reasons for the scarcity of water, management of water resources, multi-purpose river projects, objectives of these, adverse effect or limitations of multi-purpose river project, movement against multi-purpose projects, rainwater harvesting, methods in India, advantages of rainwater harvesting. Before starting my chapter, I would like to introduce a drop here: water, water everywhere, not a drop to drink. Water, water everywhere, it means चारों तरफ पानी ही पानी है, not a drop to drink, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हम समुद्र के पास खड़े हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज सलाइन वाटर, नॉट कंज्यूमेबल। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, बट only a small fraction of it consumable. Let's see some facts and figures of water. As per UN World Water Development Estimation 2003, 96.5% of total volume of world's water exists as oceans, and only 2.5% exist as fresh water. If we consider 2.5% as 100, then 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland, mountainous regions of the world. Remaining 30% of this stored as groundwater in rivers, lakes, ponds, etc. India receives nearly 4% of the global precipitation, rain and snow, but ranks 133rd in the world in terms of water per person per year availability. Water scarcity. What is water scarcity? Shortage of water as compared to its demand is known as water scarcity. This is a situation in which there is not enough water to meet all demands, including that needed for ecosystems to function effectively. Ecosystems को effectively work करने के लिए sufficient water requirement का पूरा ना होना water scarcity है. We receive enough rainfall, have sufficient number of both perennial and seasonal rivers and underground water, yet we face the problem of water scarcity. यदि water scarcity की बात इंडिया के रेफरेंस में हम करें तो फर्स्ट इमेज राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों की आती है, जहां पर महिलाएं पानी लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह समस्या सिर्फ गुजरात और राजस्थान की है। भारत के अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, इसके साथ अन्य राज्यों में भी यह समस्या देखने को मिलती है। Now let's see reasons of the scarcity of water. Reasons reasons for the scarcity of water. First, seasonal variations in rainfall. Second, uneven distribution of rainfall over space and time. First two reasons are natural reasons.
बारिश का समय पर ना होना और सभी राज्यों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण एक जैसा ना होना। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, वाटर पॉल्यूशन। इसे आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं किस तरह से घरेलू और फैक्ट्रियों में उपयोग होने वाला गंदा पानी साफ नदियों में मिलकर वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। फोर्थ, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, स्पिलिंग ऑफ द वाटर, पाइप लीकेजेस, ड्रिपिंग, overflowing of the residential tanks. Let's see in the picture. पानी किस तरह से वेस्ट हो रहा है लीकेज होके। नेक्स्ट, excessive and wasteful use of water like that washing cars. Number 6, over exploitation of water for various activities like that factories और कारखानों में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट किया जाता है। 7, urbanization and changing lifestyles have put pressure on water resources, hence water storage. Urbanization की वजह से भी water shortage की प्रॉब्लम सामने आती है। 8th, excessive use in irrigation for growing crops for increasing population. बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, खाद्यान्नों की डिमांड को पूरा करने के लिए खेती में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। 9th, growing population and subsequent rise in डिमांड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वाटर की डिमांड बढ़ती है और स्कार्सिटी की प्रॉब्लम सामने आती है। दीज रीजंस आर मैन मेड रीजंस। नाउ मैनेजिंग द वाटर रिसोर्सेज। टू कोप अप with water scarcity, different ways to conserving and managing water in ancient times. एंशिएंट टाइम्स के कुछ फिगर्स यहाँ पर हैं। अगर एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो वाटर स्कार्सिटी को किस तरह से कंट्रोल करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती थी। फर्स्ट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर चैनलिंग द फ्लड वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा इन द 1st century BC, श्रृंगावेरापुरा नियर अलाहाबाद। चंद्रगुप्त मौर्य's रीजन in 3rd century BC, dams, lakes and irrigation systems extensively built. Bhopal Lake, an artificial lake built in the 11th century. Tank in Hauz Khas, Delhi, constructed by Iltutmish for supplying water to Shiri Fort area in the 14th century. Now, if we थिंक अबाउट मॉडर्न टाइम्स की अगर बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स पर काम किया। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एम्स टू डेवलप proper management of water resources by storing river water for many purposes. Multi-purpose river project is nothing but a dam. A dam is a reservoir, lake or impoundment created by a barrier built across the river. The barrier obstructs, directs or retard the flow of water. Our first Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru, called these multi-purpose projects as the Temple of Modern India. Now, objectives of multi-purpose project. First, generation of electric power. India अपनी टोटल इलेक्ट्रिक पावर रिक्वायरमेंट का 22% डैम के थ्रू जनरेट करता है. सेकेंड, सोयल कंजर्वेशन. दीज प्रोजेक्ट्स कंजर्व सोयल बाय स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ रिवर वाटर. नेक्स्ट, फ्लड कंट्रोल. दीज प्रोजेक्ट्स कंट्रोल फ्लड बाय स्टोरिंग द excess water in their reservoir. Irrigation during the dry season. बारिश जब नहीं होती तो उन दिनों में खेती को सिंचाई प्रोवाइड कराते हैं डैम्स. अफोस्टेशन ट्रीज. अफोस्टेशन ट्रीज रिजर्वायर के चारों तरफ बड़े पैमाने पर प्लांटेशन किया जाता है ताकि नेचुरल इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ को
प्रिजर्व किया जा सके। नेक्स्ट, फिशरीज, these projects provide controlled conditions for breeding of fish. Water navigation, these projects provide inland navigation through main river as well as associated canals. Tourism, these reservoirs also act as tourist attraction. टूरिस्ट अट्रैक्शन का काम करते हैं डैम्स, जहाँ पर लोग बोटिंग और इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट किया जाता है ये सब देखने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। फर्स्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जब डैम क्रिएट किया जाता है तो उसके आसपास के एरिया से वनस्पति, जीव जंतु तथा वहाँ के निवासियों को शिफ्ट किया जाता है, उनको डिस्प्लेस किया जाता है, जिसकी वजह से उनका पूरा एनवायरमेंटल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन सोयल फर्टिलिटी। एनुअल फ्लड्स यूज्ड टू रिन्यू द सोयल विथ सिल्ट, देयर एक्ट्स एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, बट रिडक्शन इन फ्लड्स reduces the fertility of soil and increases salinity of soil. Impact on society. Large river projects cause large scale displacement of local community. लोकल कम्युनिटीज़ को वहाँ से बड़े पैमाने पर क्योंकि डिस्प्लेस्ड किया जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनसे उनकी ज़मीनें सरकार एक्वायर कर लेती है प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से उनका जो कल्चर है वो डिस्टर्ब होता है और साथ ही साथ जो पुअर पीपल हैं और रिच पीपल हैं उनके बीच का गैप भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। हम डैम्स में फिश ब्रीडिंग करते हैं, ये आपने उसके पॉजिटिव्स में देखा था, बट fish in the reservoir of dam do not get sufficient nutrients, nutrient material उनको sufficiently नहीं मिल पाता। इसके अलावा क्योंकि डैम restricted होते हैं, बाउंडेड होते हैं, तो फिशेस माइग्रेट भी नहीं कर पाती हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। फार्मर्स हैव चेंज द क्रॉप पैटर्न इन मैनी रीजन्स बाय शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव मेथड्स। फार्मर्स ऐसी फसलों को उगाना शुरू कर देते हैं जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जैसे राइस, जिसकी वजह से वाटर का वेस्टेज होता है। टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट। डैम्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर। दिस कॉजेज डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड कंट्रीज। जैसे डैम्स रिवर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, रिवर के वाटर को स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से कई बार डैम्स स्टेट और कंट्रीज़ के बीच भी डिस्प्यूट का कारण बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोयना डैम built on Krishna River in Maharashtra reduces the water supply in Andhra Pradesh and Karnataka। यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कोयना डैम जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर ये ब्लेम किया जाता है कई बार कि महाराष्ट्र से उसका वाटर सप्लाई आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। रिडक्शन करने की वजह से आपस में स्टेट डिस्प्यूट का एक कॉज बनता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वोयर। Regulating of rivers affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive collection of sediment at the bottom of the reservoir। रिजर्वायर्स क्या करते हैं, रिवर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर के फ्लो के साथ, वाटर फ्लो के साथ जो डिफरेंट सेडिमेंट्स, सिल्ट, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो उसके साथ आते हैं, क्योंकि फ्लो कम है इसलिए वो रिजर्वायर के बॉटम में धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और जो वाटर कैपेसिटी स्टोर करने की, वाटर स्टोर करने की जो कैपेसिटी डैम की है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे में जब बाढ़ आती है तो उसका पानी रिजर्वायर
उतना कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो पानी छोड़ना पड़ता है। और यही रीज़न रहा है 2006 में गुजरात और महाराष्ट्र में जो फ्लड सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ रिजर्वोयर एक बड़ा कारण रहा है। Movements against multi-purpose projects. We have seen so many adverse impacts of multi-purpose river project as like adverse impact on environment, society and changing cropping pattern. That's why there are so many disputes or movements against मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं इस तरह के जो मूवमेंट्स मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट क्रिएट हुए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक एनजीओ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिससे कि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट्स, ट्राइबल पीपल, फार्मर्स और सोशल एक्टिविस्ट्स जुड़े हुए हैं, जो टाइम टू टाइम पर डिमांड करते रहते हैं पीपल्स की रिहेबिलिटेशन और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शंस की। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट जो कि नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है गुजरात में, वहाँ पर आज तक भी लोकल कम्युनिटीज़ का मासिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन आज भी उसके लिए काम करता रहता है और ये मूवमेंट्स चल रहा है। सिमिलरली मासिव डिस्प्लेसमेंट इन टिहरी डैम प्रोजेक्ट ऑन भागीरथी ड्रू मैनी सोशल मूवमेंट्स। सेम यही सिचुएशन टिहरी डैम के साथ है जो भागीरथी नदी पर बंधा है, वहाँ पर भी प्रॉपर लोगों का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, रिहंद वैली प्रोजेक्ट ओवर सोन रिवर इन उत्तर प्रदेश क्रिएटेड मासिव डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू विच इट इज़ फेसिंग पब्लिक एजिटेशन। रिहंद वैली प्रोजेक्ट जो कि सोन रिवर पर बंधा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी पब्लिक एजिटेशन को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि मासिव डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू मासिव डिस्प्लेसमेंट। फार्मर्स वर एजिटेटेड अप टू अ राइट व्हेन मोर वाटर ऑफ साबरमती बेसिन गुजरात सप्लाइड टू अर्बन एरियाज ओवर ड्रोट एरियाज। गुजरात की प्रॉब्लम को देख लीजिए, यहाँ पर साबरमती बेसिन में से साबरमती बेसिन से जो वाटर सप्लाई होता है वो अर्बन एरियाज़ को ज़्यादा हो गया, और जहाँ पर रूरल एरियाज़ में उसकी ड्रॉट एरियाज़ में रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर उसका फ्लो कम कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स एजिटेट हुए और वो राइट तक पहुँच गई, बात दंगों तक पहुँच गई। Interstate water disputes are also common with regard to sharing the costs and benefits of the multi-purpose projects like between Karnataka and Tamil Nadu on sharing of कावेरी रिवर वाटर। ये एक एग्जाम्पल है। इट मीन्स मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स की कोस्ट्स और उसके बेनिफिट्स को लेकर स्टेट में लड़ाई झगड़े या डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। Next, as you shown, there are so many merits as well as demerits of multi-purpose river projects. That's why we opt another method to sort out the problem of water scarcity, that is rainwater harvesting. What is rainwater harvesting? Rainwater harvesting is the accumulation and storage of rainwater फॉर रीयूज बिफोर इट रन्स ऑफ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेन वाटर बारिश का जो पानी होता है, इससे पहले कि बह के वो नालों में मिल जाए उसको हमें स्टोर करना होता है और उसको हम वापस रीयूज करते हैं। दैट्स कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे पैटर्न हैं, तरीके, मेथड्स हैं जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं, जिनकी हम यहाँ बात करेंगे। This method uses include water for gardening, livestock, irrigation, etc. This is an alternative system of dealing with water shortage. Rainwater harvesting methods in India. First, khadins and joharts in arid and semi-arid regions like that राजस्थान की अगर बात करें तो खदीन सिस्टम को जैसलमेर में ऑप्ट किया गया है, जहां पर पहाड़ी
इलाके से पानी ढलान से होता हुआ यहाँ पर हम एक बैरियर लगाकर उसको स्टोर कर लेते हैं, और उससे थोड़ी दूरी पर यहाँ पर क्योंकि वाटर सीपेज हो गया लैंड के अंदर, यहाँ पर ये कलेक्ट हो गया, तो हम यहाँ पर बोरवेल या ट्यूबवेल के थ्रू इस पानी को वापस निकाल कर रीयूज़ कर लेते हैं। जोहर्ट्स की बात करें अगर, तो राजस्थान के अन्य हिस्सों में जोहर्ट्स पैटर्न को फॉलो किया जाता है, जिसमें एक बड़ा टैंक बनाकर हम वाटर के रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको रीयूज़ किया जाता है। बी, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। People living in arid regions of Rajasthan and Gujarat, where rainfall is scanty, have found ways to store rainwater falling on rooftops. Rooftop water harvesting में घर की छतों पर जो पानी कलेक्ट होता है उसको हम एक पाइप के जरिए नीचे ज़मीन में गड्ढा खोद के उसको यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं और फिर इसको हम वापस रीयूज़ करते हैं। दैट्स कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बी, बैम्बू ड्रिप irrigation system. This system is in practice for 200 years in Meghalaya. In this system, water from streams and springs in the hills get transported to agricultural fields by using bamboo as pipes. इस सिस्टम में बैम्बू को एज अ पाइप यूज़ किया जाता है। बैम्बूज को हिल्स में सेट कर दिया जाता है जहाँ से पानी ड्रॉप सिपेज होता हुआ एक बैम्बू से दूसरे बैम्बू में आता हुआ एग्रीकल्चरल फील्ड्स तक पहुँचाया जाता है। डी, inundation channels. In the flood plains of Bengal, people develop inundation channels to irrigate their fields. Inundation को हिंदी में सैलाब कहेंगे। इनंडेशन, सैलाब या बाढ़, जहाँ पर पानी बहुत अधिक मात्रा में आता है, एकदम तेजी के साथ आता है, वहाँ पर हम डिफरेंट चैनल्स के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू उसको हम फील्ड्स तक पहुँचाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर को इरिगेट करने में हमारी हेल्प करता है। ई, गुल्स और कुल्स। इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स people built diversion channels to collect rain water, spring water and store circular tanks like the gulls or kuls. For example, Western Himalayan और हिमाचल प्रदेश for agriculture. हिमाचल प्रदेश या पहाड़ी हिस्सों में इसको गुल्स या कुल्स बोला जाता है, जहाँ पर पानी को हम माउंटेनियस रीजन्स में एक स्टोर कर लेते हैं, टैंक्स क्रिएट करके उसको वाटर को स्टोर कर लेते हैं और फिर हम इस वाटर को रीयूज़ करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। दैट्स कॉल्ड गुल्स और कुल्स। एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ मैनी एडवांटेजेस लाइक it is considered as the purest form of natural water and a major source of drinking water. क्योंकि रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू पानी हम सिक्योर करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो ये प्योर वाटर होता है और इसको हम एज अ ड्रिंकिंग वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस ऑल्सो। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो पानी स्टोर किया उसको यूज़ करते हैं। द वाटर स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड इन टैंक्स हेल्प इन कूलिंग बेसमेंट्स रूम्स इन द हॉट समर। हॉट समर सीजन में जहाँ हम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के किसी भी मेथड के थ्रू जो वाटर हम टैंक्स में स्टोर करते हैं, से हमारे आसपास के एरिया और बेसमेंट एरिया को कूलिंग करने में हेल्प मिलती है। That's another benefit of this. It helps in meeting our growing water needs. Obvious सी बात है, increasing population due to increasing demand of water, rainwater harvesting इस growing water demand को fulfill करता है हमारी। So आपने देखा कि rainwater harvesting का कितना benefits है हमारी लाइफ में। In many parts of rural and urban India, rainwater harvesting successfully adapted to store and conserve water. Tamil Nadu
is the first and the only state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state and punished the defaulters. तमिलनाडु भारत का एकमात्र और पहला स्टेट है जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया गया है सभी घरों के लिए, और इसको ना करने वालों के लिए इसको पनिशेबल ऑफेंस भी बनाया गया है, इसके लिए सजा भी है तमिलनाडु में। There are some questions here. Try to solve them. Try to solve them. Thank you. यहाँ चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. प्लीज़ ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस. 1. Define multi-purpose river project. 2. Examine the ill effects of industrialization and urbanization on water resources. 3. Why do some people oppose dams? 5. Explain any 3 reasons due to which large dams have come under great opposition in recent years. 6. Water resources are depleting fast in India and water is necessary for life. Suggest 3 measures to conserve water. It is very important question. 7. Why is rooftop rainwater harvesting important in Rajasthan? Explain. I hope so you understand this chapter or contents of this chapter very well. Please try to do these questions. Thank you.